بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان نہ مل سکا۔ الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرے گا۔ الیکشن کمیشن فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کرے گا۔ الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ سے حکم امتناع خارج کرنے کی استدعا بھی کرے گا۔ اسی پر بات کریں گے، عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، آگاہ کیجیے گا۔ الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق فیصلہ معطل کرنے کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا 3 دن جو ہے وہ اہم ترین اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو ڈویژنل جو بینچ ہے اس میں رجوع کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ سے اس بات کی استدعا کرے گا کہ جو حکم امتناع جو دیا ہے اس کو خارج کیا جائے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا یہ موقف ہے کہ سپریم کورٹ میں ابھی اس حوالے سے کوئی پٹیشن نہیں دائر کرنی چاہیے۔ الیکشن کمیشن کی جو قانونی ٹیم ہے انہوں نے الیکشن کمیشن حکام کو تمام تر صورتحال جو فیصلہ آیا تھا اس پر آگاہ کیا ہے، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن اور ان کی قانونی ٹیم اس بات پر متفق ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ بینچ سے ہی رجوع کرے گا اور انہی سے اپیل کرے گا کہ یہ حکم امتناع کو خارج کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان خان آپ کا۔ ایم کیو ایم اور نون لیگ کا کراچی کے مسائل کے حل کے لیے مشترکہ جدوجہد پر اتفاق۔ بہادر مرکز پر شہباز شریف اور خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں دونوں جماعتوں کے وفود کی ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کے مل کر کام کرنے سے شہر کے مسائل حل ہوں گے۔ نوجوانوں کو کلاشن کوف نہیں، لیپ ٹاپ اور کتابیں تھمائیں گے۔ کراچی کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور ٹینکر مافیا کا راج ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے انتخابات جیت کر کراچی کی محرومیوں کے خاتمے کا عزم دہرا دیا۔ شعیب مختار کی رپورٹ دیکھیے۔ صدر نون لیگ شہباز شریف کی پیر بگارہ سے ملاقات۔ مسلم لیگ نون اور جی ڈی اے کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق ہو گیا۔ ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ مسلم لیگ نون اور جی ڈی اے ایک دوسرے کے مخالف امیدوار کھڑے نہیں کرے گی۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے نمائندے طہا ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی طہا، بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں شہباز شریف کی پیر بغالہ سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ چکی ہے۔ مسلم لیگ نون اور جی ڈی اے ایک دوسرے کے سامنے اپنے امیدوار کھڑے نہیں کریں گے۔ ملاقات میں اس بات پر اتفاق ہوا ہے۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے تمام جماعتوں کے ارکان پر مشتمل کمیٹی بنانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ کمیٹی میں اتحاد میں شامل تمام جماعتوں کے دو ارکان کو شامل کیا جائے گا، اور یہی کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ کس جگہ سے، کس نشست سے کس پارٹی کا امیدوار جو ہے وہ انتخابات میں اترے گا۔ ساتھ ہی ایم کیو ایم، جے یو آئی، جی ڈی اے اور مسلم لیگ کے ارکان اس کمیٹی کے اندر شامل ہوں گے، جبکہ کمیٹی کا اجلاس جلد بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ جلد از جلد یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو حتمی شکل دی جا سکے۔ جی بہت شکریہ طہا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آرمی چیف کا نیشنل فارمرز کنونشن سے تاریخی خطاب۔ زراعت اور مویشی بانی تقریباً ہر نبی کا پیشہ رہا ہے، کیونکہ اس پیشے میں ڈسپلن، تکلیف نما اور صبر شامل ہیں، جن کے نتیجے میں بے تحاشا انعامات ملتے ہیں۔ آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، پاکستان کے بارے میں افواہیں اور منفی باتیں بتائی جا رہی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کلمے کے نام پر 2 ہی ریاستیں قائم ہوئیں، ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، پاکستان وسائل سے مالا مال ہے۔ پاکستان کے پاس گلیشیئرز، دریا، پہاڑ اور زرخیز زمین ہے، جس سے دنیا کا بہترین چاول، کنو اور آم جیسے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ تاریخی خطاب کیا ہے آرمی چیف نے نیشنل فارمرز کنونشن سے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ زراعت اور مویشی بانی تقریباً ہر نبی کا پیشہ رہا۔ پاکستان کے بارے میں افواہیں اور منفی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کلمہ کا نام پر 2 ہی ریاستیں قائم ہوئی ہیں۔ آرمی چیف کا نیشنل فارمرز کنونشن سے تاریخی خطاب۔ زراعت اور مویشی بانی تقریباً ہر نبی کا پیشہ رہا ہے، جبکہ اس پیشے میں ڈسپلن، تکلیف، صبر شامل ہیں، جن کے نتیجے میں بے تحاشا انعامات ملتے ہیں۔ آرمی چیف کا اس موقع پر یہ کہنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بارے میں افواہیں اور منفی باتیں بتائی جا رہی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کلمے کے نام پر 2 ہی ریاستیں قائم ہوئیں، ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان وسائل سے مالا مال ہے۔ پاکستان کے پاس گلیشیئر، دریا، پہاڑ اور زرخیز زمین ہے، جس سے دنیا کا بہترین چاول، کنو اور
आम जैसे फल, ग्रेनाइट, सोना और तांबा जैसे खजाने यहाँ पर मौजूद हैं। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा कि 60 की दहाई में पाकिस्तान एशिया का तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क था, लेकिन हमने कायद-ए-आज़म के 3 ज़ेरी असूलों ईमान, इत्तेहाद, तंजीम को भुला दिया, जिसकी वजह से तनज़ली का शिकार हुए। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद यही है कि हमें सबसे पहले ज़राअत पर काम करना है। आर्मी चीफ की जानिब से खिताब किया गया है। नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से वो खिताब कर रहे थे। आर्मी चीफ का नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से तारीखी खिताब। आर्मी चीफ का कहना था कि ज़राअत और मवेशी बानी तकरीबन हर नबी का पेशा रहा है। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि कलमे के नाम पर 2 ही रियासतें कायम हुई हैं। आर्मी चीफ का नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से तारीखी खिताब। ज़राअत और मवेशी बानी तकरीबन हर नबी का पेशा रहा है। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया, पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि कलमे के नाम पर 2 ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तफाक नहीं है। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया, ज़राअत और मवेशी बानी तकरीबन हर नबी का पेशा रहा है, क्योंकि इस पेशे में डिसिप्लिन, तकलीफ़ और सब्र शामिल है, जिनके नतीजे में बेतहाशा इनामात मिलते हैं। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया, पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कलमे के नाम पर 2 ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तफाक नहीं है। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया, पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। पाकिस्तान के पास ग्लेशियर्स, दरिया, पहाड़ और ज़रख़ेज़ ज़मीन है, जिससे दुनिया का बेहतरीन चावल, कीनू और आम जैसे फल, जबकि ग्रेनाइट, सोना और तांबे जैसे ख़जाने मौजूद हैं। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया है, तारीखी खिताब किया गया है। आर्मी चीफ की जानिब से नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि ज़राअत और मवेशी बानी तकरीबन हर नबी का पेशा रहा है। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि कलमे के नाम पर 2 ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तफाक नहीं है। आर्मी चीफ का नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से तारीखी खिताब। आर्मी चीफ का कहना था कि ज़राअत और मवेशी बानी तकरीबन हर नबी का पेशा रहा है। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि कलमे के नाम पर 2 ही रियासतें कायम हुई। ज़राअत और मवेशी बानी तकरीबन हर नबी का पेशा रहा, क्योंकि इस पेशे में डिसिप्लिन, तकलीफ़ और सब्र शामिल हैं, जिनके नतीजे में बेतहाशा इनामात मिलते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कलमे के नाम पर 2 ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तफाक नहीं है। पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। पाकिस्तान के पास ग्लेशियर, दरिया, पहाड़ और ज़रख़ेज़ ज़मीन है, जिससे दुनिया का बेहतरीन चावल, किन्नू, आम जैसे फल, ग्रेनाइट, सोना और तांबा जैसे ख़जाने मौजूद हैं। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के पास इंटर पार्टी इलेक्शन के मामलात देखने का इख्तियार नहीं है। बल्ले का निशान अवाम की उमंगों का निशान है। अगर हम निशान वापस लेते हैं तो रिजर्व सीटें किसको मिलेंगी? हॉर्स ट्रेडिंग का जिम्मेदार कौन होगा? 2 दिन से सियासी खानदान अदलिया पर हमला आवर है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। हम अदलिया से इल्तिमास करते हैं कि अगर ऐसे हमले किए जाएंगे तो वक्त से पहले इसका तदारुक किया जाए। हमारी सारी अवाम से उम्मीद दरख्वास्त है कि पुरअमन रहे। फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराओ और इंशाल्लाह 8 तारीख को पब्लिक बोलेगी, ये अवाम फैसला करेंगे। नून लीग के रहनुमा इसहाक डार का कहना है कि नून लीग किसी सियासी जमात से वसी तर इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेगा। सीट एडजस्टमेंट महदूद पैमाने पर करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से अच्छे ताल्लुकात हैं। इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता है, मगर एहतराम एक तरफ, इंतखाबात एक तरफ। सियासी इंतकाम की जो तारीख PTI ने रकम की, उसकी मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह करे सबको इंसाफ मिले। एडजस्टमेंट की जो असूली फैसले होंगे वो क़यादत ही कर सकती है। मैं तो आपके उस पर कोई कैटेगरी कमेंट नहीं दे सकता। वो मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब फैसला करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए बहुत इज़्ज़त एहतराम है। हमने बहुत हमारी इस PDM की हुकूमत का हिस्सा भी थे और हमने इकट्ठे काम किया। इंशाअल्लाह देखिए, एहतराम एक तरफ है,
इलेक्शन एक तरफ है और उसमें अपनी पार्टी के लिहाज से अपनी जिम्मेदारियां, लीडरशिप की जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाना एक तरफ है। तो तीनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह कोई इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने ये तमाम हमारे मसलन अगर एक हल्के में 5 उम्मीदवार हैं तो उनको इजाज़त लीडरशिप ने दी है जब इंटरव्यूज़ हुए कि वो तमाम अपने पेपर्स फाइल कर लें और ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है सब में कि जिसको भी पार्टी नॉमिनेट करेगी, टिकट इशू करेगी, वो टिकट जमा कराएगा। बाकी हमारे जो उम्मीदवार हैं वो अपने पेपर्स वापस ले लेंगे और विड्रॉल डेट 12 जनवरी है। जो उस जमात ने इस मुल्क में एक तारीख रकम की है सियासी इंतकामों की, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह करे आइंदा भी कभी ना हो और ना पहले कभी थी। अल्लाह करे हर एक को इंसाफ मिले और कानून, आइन और इंसाफ के तहतधारी के साथ डीलिंग होनी चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से MKM के सीनियर रहनुमा रज़ा हारून और अनीस एडवोकेट ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। आसिफ अली जरदारी ने रज़ा हारून और अनीस एडवोकेट को पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। मुलाकात में शहर कायद की तरक्की, खुशहाली, क़याम अमन पर तबादला ख्याल किया गया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी का चार्टर ऑफ कराची शहर पर दूर रस असरात मुरतब करेगा। पीपल्स पार्टी कराची वालों की जमात है। आसिफ जरदारी ने कराची के मुस्तकबिल को दुबई से तशबीह देते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया से सरमायाकारी कराची आए। अपडेट कर रहे हैं आपको साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से MKM के सीनियर रहनुमा रज़ा हारून और अनीस एडवोकेट ने मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि तहरीक इंसाफ बुज़दिलों की जमात है, आज उनकी चीखें निकल रही हैं। PTI दौर में नून लीगी रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया गया। हमने गिरफ्तारियां शान से दी, मुज़ाहमत नहीं की। कि हम सब ने गिरफ्तारियां दी हैं और हम सब PTI के दौर में गिरफ्तार होते रहे, लेकिन हमने तो हमेशा आगे बढ़कर अपने आप को पेश किया है। कभी हमने गिरफ्तारी के सामने इस तरह की मुज़ाहमत नहीं की कि हमें धक्के खाने पड़े हों। तो इंसान की इज़्ज़त अपने हाथ होती है। अगर आपका वारंट है, आपको गिरफ्तार करने आई है पुलिस, आप उसके साथ जाएं। तो PTI इस वक्त जो बड़ी इनकलाबी जमात बनती थी उसकी चीखें निकल रही हैं, हर तरफ चीखें हैं। जितने लोग पकड़े गए, कोई स्ट्रेचर पे आया, कोई व्हील चेयर पे आया, कोई हाई करता था, कोई ओए करता था, कोई मर गए करता था और फिर जो ही वो छुटते थे तो ठीक हो जाते थे। तो ये तो बड़ी एक बुज़दिलों की जमात है। अगर आपको गिरफ़्तार किया जाता है तो बहादुरी से गिरफ़्तारी पेश करें और अदलिया में जाके इंसाफ हासिल करें। जब कोई भी मुल्ज़िम मज़ामत करता है तो पुलिस ऐसे ही पेश आती है उससे। साबिक वफाकी वज़ीर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान के NA 78 से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। गुजरांवाला में गुफ्तगू करते हुए इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान कहते हैं, अल्लाह ताला के ख़ास करम है कि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल दुरुस्त पाई गई। अब इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। सियासी जमातें इलेक्शन के मामले में पुरएतमाद हैं। इलेक्शन 8 फरवरी को होगा, इसमें कोई अबहाम नहीं होना चाहिए। ख़ास करम है कि जो कागजात नामजदगी हैं उनकी आज जांच पड़ताल हुई और अल्लाह के करम से वो दुरुस्त पाए गए। सियासी जमातें इंतखाबात के मामले में पूरी तरह इस वक्त यकसू हैं, पुरएतमाद हैं और इंशाअल्लाह 8 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे। पहले इसमें कोई इबहाम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का आइन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये ज़िम्मेदारी देता है कि उन्होंने इंतखाबात के साफ, शफाफ और करप्ट प्रैक्टिस से पाक इनकाद को यकीनी बनाना है। तमाम इदारे पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए इस वक्त मामूर हैं। अदालत से ये तवक्को है कि ये जो आइनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है, उनके कंधों पर बड़ा भारी बोझ है। तो पाकिस्तान की अदालतें भी इसमें इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगी। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने जल्लो पार्क और बोटानिकल गार्डन जल्लो का दौरा किया। जल्लो पार्क में टूटी सड़कें, ख़राब सूरत हाल पर वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी बरहम हो गए। जल्लो पार्क को अपग्रेड करने का प्लान तलब कर लिया। पार्क का इंतज़ाम महकमा जंगलात से PHA को देने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत की।
वज़ीर आला ने हिदायत की कि जलो पार्क को बेहतर बनाने के लिए जल्द इकदाम किए जाएँ। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने PHO के ज़ेर इंतज़ाम बोटेनिकल गार्डन का भी तफसीली विज़िट किया। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने तितली घर का भी मुआयना किया। बोटेनिकल गार्डन में मज़ीद मुनफरद दरख्त और फूलदार पौधे लगाने का कहा। सूबाई वज़रा आमिर मीर, असफर अली नासिर, CCPO, कमिश्नर DGPHA, डिप्टी कमिश्नर और मुतलका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का शालामार बाग का दौरा, बाग की सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने खसूसी रिक्शे में बैठकर शालामार बाग का दौरा किया। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने शालामार बाग के तरफ गैर कानूनी तामीरात के खात्मे का हुक्म दिया। DG वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने वज़ीर आला को शालामार बाग की बहाली के प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने कहा था, शालामार बाग को पुरानी तारीखी हैसियत में बहाल करेंगे। शालामार बाग की इमारत के तारीखी विरसे को महफूज किया जाएगा।